all my dear students. Good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology of English. And today I am here with a new video of your chapter number 2. Up till now in chapter number 2 we have discussed about the male reproductive organs. And all those structures of the male reproductive organs we just see externally. So today we will see internal structure of anther by means of a transverse section, and we will see all those four layers, and we will also cover the process of formation of microspore, and that is simply what? Microsporogenesis. So in this video we will cover the process of microsporogenesis or formation of microspore as well as transverse section of anther. So we will cover the first, that what? Transverse section of anther. And as you know that the male reproductive organ that was stamen. Stamen has two parts. पहला था एंथर, और एंथर से जो लगा हुआ था वो कौन सा था? फिलामेंट. तो हमने एंथर को देखा था एक्सटर्नली. We have just observed that anther was like this externally, and now we will see its transverse section. So in case of anther we will get four layers. The first one is epidermis, and this epidermis is the outermost. Next one is endothecium. This is the second layer. The third one is middle layer, and the fourth one is just what? Tapetum. So in the transverse section of anther we find four layers. The outermost layer epidermis, the second one is endothecium, and these epidermis and endothecium, these are single layered. These are single layered, and this simply middle layer, this is just was 3 to 4 layers. यानी मिडिल लेयर के पास खुद की 4 से 5 पेरेंट कैमेटस सेल्स की लेयर होती है, एंड टैपेटम इज द स्पेशल लेयर दैट इज जस्ट हैविंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस. सो इसमें से बेटा दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी टैपेटम से हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. सो दैट्स व्हाई टैपेटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी विल फाइंड आउट ऑल दीज लेयर्स in transverse section by means of a diagram. Then after we will discuss the role of all these four layers. So first of all, let's quickly draw the diagram and just label all these four layers. See such kind of arrangement. Let's quickly make. Like this. Again invagination, again like this. This will again invagination there will be, and this will come again like this, and again there is slight invagination, and again like this. So now we will just darken it. इसको डार्क कर लेते हैं. The outline of transverse section of anther. हमने इसके पहले भी देखा था कि इसके पास कितने थे? 4 pollen sacs थे या microsporangium थे. तो we will make it here little bit with dotted lines. We will later on fill it. Okay, this one is also here, and this one is also. So these all four are what? Microsporangium. ठीक है, and the distance जो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक दिख रही है, this one is known as anther wall. Okay, so बेटा ये क्या है? यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या है? एंथर वॉल है. अब हम इसी एंथर वॉल में देखेंगे कि कितने तरह की सेल्स यहाँ पे हैं. हमने बताया था आपको देयर आर 4 काइंड ऑफ लेयर्स. So we will make all those 4 layers here in detail. Let's quickly make. जैसा हमने आपको बताया था, we will start from here. This one is outermost, and this is single layered, and these have flat cells.
single layer. I am just making half portion and this portion will be also as it is. मैं केवल यहाँ पे आपका आधा पोर्शन बना रहा हूँ because of to save the time. समय को बचाने के लिए बेटा मैं आधा पोर्शन बना रहा हूँ. आधा पोर्शन जो होगा सेम इसी तरह का होगा. So whenever you will draw the diagram, you have to draw the complete diagram. आप जब कभी भी एग्जाम में डायग्राम बनाओगे तो आपको कंप्लीट डायग्राम बनाना होगा. आपको दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेयर. दिस वन इज व्हाट एपिडर्मिस. ये बेटा लेयर जो आपको दिख रही है, दिस लेयर, दिस इज व्हाट एपिडर्मिस. जैसा हमने आपको बताया था, दिस इज सिंगल लेयर. एपिडर्मिस outermost and this is just what single layer and made up of and having flat cells. यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये फ्लैट सेल्स हैं और ये सिंगल लेयर है और किस सेल से बनी है? फ्लैट सेल से मिलकर बनी है. और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का. अब हम बात करेंगे दूसरी लेयर की जो हमने आपको बताया था, एंडोथीसियम की. So the second layer is also single layer but cells are arranged radially. यहाँ पे जो सेल्स हैं उनका क्या होता है? रेडियल अरेंजमेंट होता है. सेल्स यहाँ पे रेडिएटिंग है और इनका अरेंजमेंट क्या है? कॉम्पैक्ट है. Okay, so this was the second layer, that is what endothelium. Endothelium is also single layer and cells are radially arranged in compact manner. यानी यहाँ पे क्या है? जो सेल्स हैं उनका रेडियल अरेंजमेंट है और जितनी भी सेल्स हैं वो क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. सो एंडोथीसियम, दिस इज जस्ट व्हाट, दिस इज आल्सो सिंगल लेयर. एपिडर्मिस वाज आल्सो सिंगल लेयर. और बेटा इसका फंक्शन क्या है? ये भी प्रोटेक्टिव है. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेयर, दैट इज व्हाट मिडिल लेयर. वी विल डिस्कस हियर द थर्ड लेयर. These are 3 to 4 layer thick and cells are here loosely arranged and the cells are parenchymatous in nature. इसकी जो thickness होती है वो 3 to 4 cells की होती है. All these are parenchymatous in nature. I am just drawing it quickly as soon as possible. Okay, so this is what the layer number 3 and this one is known as, this was the layer number 2 and this is 3, this one is known as middle layer and this middle layer is just was 3 to 4 cells in thickening. यानी इनकी जो थिकनिंग होती है वो 3 से 4 यानी 3 से 4 सेल्स की थिकनिंग होती है. And cells are parenchymatous. Cells are parenchymatous and loosely arranged. यानी यहाँ पे जो सेल्स हैं बेटा थर्ड लेयर की, ये पेरेनकाइमेटस है नेचर में और वो क्या है? लूजली अरेंज होती है. एंड epidermis, endothelium, middle layer, these three are protective and these three layer become fibrous at the time of dehiscence of anther. तो ये तीनों लेयर्स क्या होती हैं? डेहिसेंस ऑफ एंथर में मदद करती हैं और प्रोटेक्टिव है. और जब एंथर मैच्योर होता है, उसको फटना होता है, डेहिसेंस होना होता है, उस समय ये फाइब्रस हो जाती हैं और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज व्हाट इनर मोस्ट लेयर एंड दिस इज नोन एज टैपिटम. सो लेट्स क्विकली रिकैप. अब यहां से बेटा हम आपको दिखाते हैं चौथी लेयर जो थी, दैट वाज जस्ट व्हाट सिंपली टैपिटम. तो यहाँ
यहां से हम आपको टैपेटम बना के दिखाते हैं। सो टैपेटम, द सेल्स ऑफ टैपेटम, टैपेटल सेल्स आर सिंपली व्हाट, पिरामिडल इन शेप। सो यहां से हम आपको दिखाएंगे, दीज आर जस्ट व्हाट, पिरामिडल इन शेप। इनकी जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। एंड दीज आर द स्पेशल सेल्स, वी कैन से दैट ये स्पेशल सेल्स हैं। इनकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा वो कैसा है, पिरामिडल है। ओके, सो दीज आर द पिरामिडल सेल्स, पिरामिड शेप सेल्स हैं। सो दिस वन इज जस्ट व्हाट, इनरमोस्ट, एंड दीज आर आल्सो नोन एज टैपेटल सेल्स। तो बेटा ये जो है आपकी ये है टैपेटम। ओके, और इस जो लेयर्स को हमने बताया टैपेटम है, टैपेटम की सेल्स कैसी हैं, पिरामिड शेप है। दीज आर द पिरामिडल शेप एंड दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसको आप कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, या वी कैन से दैट पॉलन सैक। तो ये बेटा जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ऑल दीज 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, दोज आर जस्ट विजिबल हियर, ऑल दीज आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे हमने एक में क्या टैपेटल सेल्स का अरेंजमेंट दिखाया, दिस वाज जस्ट व्हाट, दीज सर्कुलर structure was just what, microsporangium. So this was outermost layer epidermis, inner to this there was endothelium, then there was 3 to 4 layer thickening, that was middle layer, and then after that is tapetum. We will discuss the role of tapetum in very detail in the last. So inside these, इनके अंदर क्या होता है, there are compactly arranged cells, compact arrangement होता है cells का। These cells are here inside, compactly arranged, and these cells are simply known as archisporial cells. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो सेल्स अंदर, इसका जो सेल्स का मास है, इनको हम कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स, और ये सेल्स क्या होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। तो ये टोटल स्ट्रक्चर किसका है, एंथर का है, ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का, जिसके पास हमने आपको बताया 4 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में है, और चौथी लेयर जो कि इनर मोस्ट है, जिसकी सेल्स पिरामिड शेप में, वो क्या है, न्यूट्रिटिव है, कुछ सर्टेन एंजाइम्स को रिलीज करने वाली है। सो इसका रोल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अंदर जो है आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा था, दिस वाज माइक्रोस्पोरेंजिया, और वी कैन से दैट पॉलन सैक थे, एंड इनसाइड दैट there was archisporial cells, and archisporial cells will later on forms pollen mother cell, or we can say that microspore mother cell. We will discuss when we will discuss the process of microsporogenesis. So this was all about the role of anther and their layers. So and here in the beginning, in between these there is a connective, यहाँ पे क्या होता है, बीच में connective होता है। So this was complete diagram of transverse section of anther. तो बेटा हमने हाफ पोर्शन बनाया, you have to make it full in the examination. आपको एग्जामिनेशन में हाफ नहीं पूरा बनाना होगा अगर आता है तो, and this one is also very important, and this is also part of your practical examination in class 12. So now we will discuss about the 4th layer, and then after we will discuss the process of microsporogenesis, कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। Now we will discuss the 4th layer, that is what, tapetum. So the cells of tapetum is just what, pyramidal, yani the cells of tapetum is pyramidal, having thick cytoplasm and multinucleate, यानी जो टैपेटल सेल्स होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास थिक साइटोप्लाज्म होता है। अगर आप बात करें फंक्शन की, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट इज व्हाट, न्यूट्रिशन। यानी इनका जो मोस्ट कॉमन फंक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन। इट मींस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग, provide nourishment to the developing माइक्रोस्पोर। यानी जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होना होगा तो वहां पे टैपेटम क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। और माइक्रोस्पोर कहां बनेंगे, पॉलन सैक्स में, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस द what function number 2. This was the first. Second, secrete enzyme catalase that dissolve callose thickening, to release microspore from microspore टेट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्पोर चूंकि मियोसिस से बन रहे होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, इस वजह से उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राएड। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड बना हुआ है उसमें जितने भी माइक्रोस्पोर हैं वो एक साथ रहते हैं। क्यों, क्योंकि कैलोस थिकनिंग होती है वहां पे। सो कैलोस थिकनिंग को डिसॉल्व करके उस माइक्रोस्पोर को रिलीज करने का काम किसका होता है, एंजाइम, जो कि रिलीज किया जाता है कैलेस के रूप में, किसके द्वारा, टैपेटम के द्वारा। यानी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूस यूबिस बॉडीज। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this produce Uvis bodies which is coated with sporopollenin. Now this is very very important, यानी produce Uvis bodies which is coated with sporopollenin. Here most resistant material, यानी जो स्पोरोपोलिन होता है, दिस इज द मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल इन द प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल होता है कौन, स्पोरोपोलिन, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, यूबिस बॉडीज। और यूबिस बॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, टैपेटम के द्वारा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। विच फॉर्म्स, यानी जो स्पोरोपोलिन है वो क्या बनाएगा, विच फॉर्म्स एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी अब यहां से हमने आपको बताया कि प्रोड्यूस यूबिस बॉडीज which is coated with sporopollenin, that is most resistant material in the plant kingdom, and which forms exine of the pollen grains। यानी जो माइक्रोस्पोर हैं, माइक्रोस्पोर बाद में किसमें चेंज हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स में। पॉलन ग्रेन्स में जब वो चेंज हो जाएंगे फिर वहां पे एंथर क्या होगा, डाइसेंस होगा उसका, पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे और फिर वो जल के क्या बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट। सो वहां से हम लेटर ऑन देखेंगे सारा प्रोसेस। बस अभी आपको जो आउटर कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की, पॉलन ग्रेन्स के पास 2 कवरिंग होती है, एक्साइन दैट इज आउटर, इंटाइन दैट इज इनर। तो जो वहां पे आउटर कवरिंग है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इस वजह से वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं अलग अलग फैक्टर्स के लिए। ठीक है, so this line is important that this tapetum is producing what, Uvis bodies, and Uvis bodies is just coated with sporopollenin, and sporopollenin was the most resistant material in the plant kingdom, and that will form later on exine of the pollen grains. We will discuss all these structures of the pollen grain, viability of the pollen grain in the next video. So next point here, next, formation of pollen kit. This is also very important. Formation of pollen kit
in certain plants, formation of pollen kit in certain plants like चाइना रोज। यानी ये क्या करता है, जो टैपेटम है आपका, किसको, पॉलन किट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एक्चुअली पॉलन किट क्या होता है, यहां से हम आपको बताते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन दैट व्हाट इज पॉलन किट। पॉलन किट इज व्हाट, स्टिकी, वी कैन से दैट। ये क्या होता है, देखा होगा जब कभी भी आप कभी सरसों के खेत से जा रहे होते हैं या कभी भी आप चाइना रोज की कांटेक्ट में आए तो आपकी स्किन में क्या होता है, एक येलो सब्सटेंस चिपक जाता है। तो जो सब्सटेंस आपके हाथ पे लगा उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन किट कहते हैं। और एक्चुअली ये जो पॉलन किट होती है ये मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, जितने भी हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, उनमें इनका प्रोडक्शन होता है। और ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, इसके साथ साथ यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो एक्चुअली पॉलन किट्स आर फॉर्म इन सर्टेन काइंड ऑफ फ्लावर्स. Example of that is China rose by means of tapetum, and we have observed that these are the most common. It means that formation of pollen kit is most common in the case of insect pollinating flowers. This line is very important, that pollen kit will form in the insect pollinating flowers. This is the sticky outermost oily. This is what, sticky outermost oily layer that produce odor, or we can say that fragrance, and this is made up of and composed of carotenoid, flavored पिगमेंट्स। यानी ये क्या करते हैं, फ्लेवर्ड पिगमेंट जो है उनसे बनते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है पॉलन किट का, तो पॉलन किट का जो फंक्शन है, पहला है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कराने का काम करते हैं। दूसरा प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यानी फ्लावर को यूवी रेडिएशन से बचाने का काम भी करते हैं। दो मेजर फंक्शन है, पहला जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जब इंसेक्ट आके बैठता है तो ये स्टिक हो जाते हैं, वहां पे चिपक जाते हैं और फिर पॉलन ग्रेन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंच जाते हैं। तो पहला काम तो इनका हो गया। दूसरा एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो दिस इज just for attraction of the insect, or this is also known as insect attractile. दूसरा यूवी रेडिएशन से हेल्प करने वाला। टाइप्स ऑफ tapetum. So there are two type of tapetum. The first glandular tapetum, and second one is a what, amoeboid tapetum. दो तरह की टैपेटम आपको देखने को मिलेगी। पहला है जो पहली है आपके यहां से ग्लैंडुलर टैपेटम, और दूसरी कौन सी है, अमीबॉइड टैपेटम। कॉमन इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड दिस इज व्हाट, secretory in nature. It means that it will release certain kind of enzymes, whatever we discuss in the videos. And this one is amoeboid tapetum, common in lower monocot and dicot. यानी ये जो अमीबॉइड टैपेटम है ये कहाँ बनेगी, जो लोअर मोनोकॉट्स है और लोअर डाइकॉट्स है, और जो आपकी ग्लैंडुलर टैपेटम है ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में बनती है। इट मींस दैट जो हाईली डेवलप्ड प्लांट है सिक्रेटरी होती है, और ये क्या होती है, लेटर ऑन आगे चल के क्या बनाएगी, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करती है। ये लेटर ऑन क्या बनाती है, फॉर्म्स प्लाज्मोडियम। यानी ये प्लाज्मोडियम जो कि क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, उसको फॉर्म करने का काम करती है।
यानी ये दो तरह की आपकी क्या थी, टैपेटम थी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, टीएस ऑफ एंथर डिस्कस किया। टीएस ऑफ एंथर में हमने बताया आपको चार तरह के लेयर्स, ठीक है। पहला आपका एपिडर्मिस था, दूसरा एंडोथीसियम था, तीसरा आपकी मिडिल लेयर थी और चौथी आपकी क्या थी, टैपेटम थी। इसमें से टैपेटम आपका इंपॉर्टेंट है। लेट्स कंसीडर एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। Endothecium, that is the second layer of anther having callose thickening। यानी क्या था कि जो एंडोथीसियम थी, जो कि क्या थी, सेकंड लेयर थी इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, उसके पास क्या होती है, कैलोस थिकनिंग, which held together the microspores। यानी जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनको एक साथ हेल्ड करने का काम कौन कर रहा था, ये कैलोस थिकनिंग कर रही थी। कैलोस थिकनिंग कहां पे मिल रही थी, एंडोथीसियम में। और इसी कैलोस थिकनिंग को जो कैलेज एंजाइम है टैपेटम के द्वारा रिलीज किया गया था, वो डाइजेस्ट करेगा और जैसे वो डाइजेस्ट करेगा माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द transverse section of anther. Now we will discuss quickly about the development of microsporangium as well as development of microspore. We discuss development of microsporangium. Development of microsporangium, or we can write here pollen sacs. So the development of microsporangium is eusporangiate type. Eusporangiate type. What is the meaning of development of microsporangium? Eusporangiate type. It means that microsporangium develop from group of cells. यानी अगर माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सेल्स से डेवलप हो रही है तो वो क्या है, यूस्पोरेंजिएट टाइप है। एक दूसरा होता है जो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होता है, उसमें सिग्निफिकेंट सेल होती ही है, वो डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक्स वी कैन सी दैट हियर यूस्पोरेंजिएट टाइप है, ठीक है। beginning young anther is made up of a mass of parenchymatous cells bounded by epidermis। यानी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो अभी हमने आपको बताया था किसके बारे में, एंथर के बारे में, तो जो यंग एंथर है उसके पास क्या होता है, एक मास होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स का, और उस पेरेन्काइमेटस सेल्स के मास को कौन घेर के रखता है, एपिडर्मिस। इन ईच लोब ऑफ एंथर एंड in each lobe of anther hypodermal cell act as archisporial cells which divide periclinally and forms primary parietal cell and primary sporogenous cell। यानी स्टार्टिंग में जो एंथर का लोब था उसमें जो हाइपोडर्मल सेल्स थी उन्होंने क्या किया, आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह एक्ट करना शुरू किया। आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनिक डिवीजन हुआ और उस डिवीजन की वजह से दो तरह की सेल्स बनी, एक
पैराइटल सेल्स बनी जो कि प्राइमरी पैराइटल सेल्स कही गई, और दूसरा जो कि आपका बना कौन, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, तो ये दो तरह की सेल्स बनी कब, जब आर्किस्पोरियल सेल्स जो कि कहां प्रेजेंट थे, हमने बताया था सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंज थे, जब हमने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन बताया था। ठीक है, किसका, एंथर का। तो वो सेल्स अब डिवाइड कर रही है, डिवाइड करने के बाद दो तरह की सेल्स, पैराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। पैराइटल सेल्स विल फॉर्म एंथर वॉल। यहां से आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी अब ये एंथर वॉल बनाएंगी, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे। और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे, बाय मींस ऑफ पॉलन मदर सेल। सो पीएमसी यानी स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएगा, पॉलन मदर सेल वी कैन से दैट, और वी कैन आल्सो राइट इट माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी जो आपकी आर्किस्पोरियल सेल्स थी कहां, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट थी, सेंटर में जो हमने देखा था ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का, उन सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होगा पैराइटल सेल्स के साथ साथ, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनेगी। पैराइटल सेल्स क्या करेगी, एंथर वॉल को बनाएगी, इसमें 4 लेयर्स होंगी जो हमने आपको बताई। उसके बाद जो दूसरी सेल्स थी प्राइमरी स्पोरोजिनस, वो क्या करेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा उससे, और उस टिश्यू से फिर क्या बनेगा, आपका पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। सो क्या समरी यहां से निकल के आई, एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में जो यंग एंथर था या बिगिनिंग में जो आपका यंग एंथर था उसके पास जो हाइपोडर्मल सेल्स थी, उन हाइपोडर्मल सेल्स ने फंक्शन करना स्टार्ट किया एज ए आर्किस्पोरियल सेल्स। और जो हमने आपको दिखाया था कब, यहां से देखिए, जब हमने आपको दिखाया था कि ये एंथर का लोब था और इसमें इस तरह की सेल्स थी, तो दीज सेल्स वर जस्ट व्हाट, आर्किस्पोरियल सेल्स। तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स थी जो कि एंथर के लोब में, एक लोब यहाँ था दूसरा यहाँ था, तो ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो एंथर के लोब में प्रेजेंट थी, में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, और जैसे ही पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ दो तरह की सेल्स बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू और सेल। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी उसने एंथर वॉल को बना लिया जिसमें चारों लेयर्स आपको मिल गए, एपिडर्मिस मिल गया, एंडोथेलियम मिल गया, मिडिल लेयर और टैपिटम। उसके बाद जो दूसरी थी आपको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, उन्होंने स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू से फिर क्या बना, यहां से आप देख सकते हैं पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी अब हम डिस्कस करने, अभी तक हमने बना लिया पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लिया है, या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लिया है। अब हम बनाएंगे माइक्रोस्पोर। कैसे बनेंगे, लेट्स क्विकली रिकैप। सो नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग विद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोgenesis, and microsporogenesis is the formation of microspore. So the process of formation of microspore is known as microsporogenesis, and this is simply very simple process. So let's quickly recap. Let's quickly recall the structure of anther जो कि हमने बताया था। This was transverse section of anther, अभी हमने आपको बनाया था। इसके अंदर हमने आपको बताया था कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं, तो ये हमने आपको बताया था, ये था माइक्रोस्पोरेंजियम, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था। दिस वाज आर्किस्पोरियल सेल्स, ये हम आपको अर्लियर बता चुके हैं। नाउ दिस वाज यंग स्टेज, ये अभी आप किस स्टेज में देख रहे थे, यंग स्टेज में देख रहे थे। जैसे जैसे क्या होगा, एंथर ग्रोज करेगा इसकी साइज भी ग्रो होगी। तो मान के चलते पहले इस साइज का था, अब इसकी साइज क्या होगी, ग्रोज हो गई। और यहाँ पे अंदर जितनी भी सेल्स थे अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस, क्योंकि पहले कम स्पेस में ज्यादा सेल्स थे, दैट्स व्हाई दे वर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एंड नाउ स्पेस इंक्रीजेस, हेंस द स्पेस बिटवीन द सेल्स विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे मान के चलते हैं जो स्पेस था सेल्स के बीच में वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एंड
some of the archisporial cells now just here remains and most of them क्या होता है, वो डिजनरेट हो जाती है। यानी जितनी भी सेल्स थी इसमें से कुछ सेल्स मैच्योर होती हैं, बाकी सेल्स क्या हो जा रही है, डिजनरेट हो जा रही है। तो ये जो सेल्स मैच्योर होके आई इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी यहां से आपने देखा पहले वो क्या थी, आर्किस्पोरियल सेल्स थी। आर्किस्पोरियल सेल्स जैसे जैसे एंथर ग्रो किया सेल्स भी ग्रोथ हुई, उसमें से ज्यादातर डिजनरेट हो गई, जो बची अब वो काम कर रही किस तरह का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम कर रही है। ये क्या था, यंग स्टेज का पॉलन सैक था। दिस वाज यंग पॉलन सैक एंड दिस वन इज व्हाट, मैच्योर पॉलन सैक। मैच्योर पॉलन सैक में क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी और यंग पॉलन सैक में क्या था, आर्किस्पोरियल सेल्स थी। यानी आर्किस्पोरियल सेल्स से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। कब हुआ है, जब एंथर क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है और जो यंग पॉलन सैक था अब वो मैच्योर पॉलन सैक में कन्वर्ट हो गया। तो मान के चलते हैं इसमें से किसी एक सेल को बाहर लेते हैं, दिस इज व्हाट डिप्लॉयड, और इसे हम आपको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोटिक डिवीजन होगा। सो हियर वन मियोटिक डिवीजन एंड ड्यू टू मियोटिक डिवीजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। सो यहां से बनेगा बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी अब क्या हुआ, ये जो सेल्स थी इनमें कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन से क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड भी अलग अलग तरह के बनते हैं। द मोस्ट कॉमन इज दिस वन, जिसमें 3 सेल्स हमको सामने से दिख रही है, एक इसके पीछे होगा। द नेक्स्ट लाइक दिस, जिसमें हमको चारों सेल्स दिख रही हैं। नेक्स्ट like this, जिसमें 4 सेल्स हमको दिख रही है। नेक्स्ट like this, here also 4 cells are visible. Next like this, another cell will be back of this. So this one is most common in the case of dicots. This one is most common in the case of monocots, and all these 3 are the abnormal condition. ठीक है, इस तरह की कंडीशन डाइकॉट्स में, इस तरह की कंडीशन मोनोकॉट्स में, और बाकी ये कंडीशन क्या होती है, एबनॉर्मल्स होती है, जो सर्टेन अलग अलग काइंड के प्लांट्स में बनती है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल, दिस वन इज आइसोबाइलेटरल, and this one is simply we will just mention here linear. This one is just simply T-shaped, इसको हम क्या कहते हैं, T-shaped. This one simply F-shaped, यानी T-shaped, F-shaped, linear, as well as isobilateral, as well as what tetrahedral. तो इतने तरह के क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रहा है, एंड all these microspores are held together by means of काइलोस थिकनिंग। मैंने आपको अर्लियर बताया था। अब टैपेटम का यहाँ पे रोल आएगा, इस काइलोस थिकनिंग को क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी। डाइजेस्ट करने के बाद माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं बेटा, यहाँ से क्या हुआ, ये इसमें में से कोई एक लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे काइलोस थिकनिंग थी वो डिसॉल्व हुई, और फिर क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड जो थे वो क्या हो गए, लिबरेट हो गए। तो ये आपने देखा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी उसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड का फॉर्मेशन हुआ, और माइक्रोस्पोर टेट्राहेड के फॉर्मेशन के बाद माइक्रोस्पोर बाहर है। अब ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बना लेंगे,
पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे? इनके बाहर एक एग्जाइम की लेयर डेवलप हो जाएगी। कैसे? हमने बताया था यूबिस बॉडी और स्पोरोपोलिन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक आउटर एग्जाइम लेयर डेवलप होगी और उस लेयर डेवलप होने के बाद जो माइक्रोस्पोर थे पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएंगे। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एंथर के अंदर हो रहा था। यहाँ से देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा आर्किस्पोरियल सेल्स थी, इसमें से कुछ सेल्स डिजनरेट हुई, स्पेस पड़ा और ये कैसे एक्ट करने लगी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा और क्या बनेगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा किसका, माइक्रोस्पोर टेट्राड का। हमने मोस्ट कॉमन बनाया है। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या होंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है। अब इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा, एक आउटर लेयर डेवलप होगी जिसे हम कहेंगे क्या है, ये एक्साइन है। और उसके बाद यहां से जो लेयर है किसकी, एंथर की, वो क्या होगी, फटेगी। यानी यहां पे क्या होगा, डेhiscence ऑफ एंथर होगा। और उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स कम्स आउट। ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस है बेटा, एंथर के अंदर हो रहा है। हमने आपको सिग्निफिकेंटली एक एक के अंदर बताया है। जो चारों लोब हुए हैं एंथर के अंदर, उन चारों लोब्स में या हम कह सकते हैं ये जो एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, उन सभी माइक्रोस्पोरेंजियम में एक साथ प्रोसेस होता है। अगर यंग स्टेज में रहेगा तो चारों में इसी यही वाली पोजीशन रहेगी। हमने एक एक करके बनाया, बट समझिए एंथर में अगर वो यंग स्टेज में है तो चारों में यही कंडीशन 1 2 3 4 सेम कंडीशन। अगर वो मैच्योर हुआ तो ये वाली कंडीशन। अगर टेट्रेट का फॉर्मेशन हुआ तो चारों में बनेगा। अगर माइक्रोस्पोर बनेंगे तो चारों में बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो हर जगह बनेंगे। डेhiscence हमेशा इसी पोजीशन पे होगा। क्यों इस पोजीशन पे होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 3 लेयर्स थी, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, यानी ये तीनों लेयर मिलती हैं तो क्या करती हैं, डेhiscence कराती है। डेhiscence ऑफ एंथर, यानी इन द डेhiscence ऑफ एंथर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर तीनों हेल्प कर रही है। डेhiscence यहीं से क्यों होता है, बिकॉज हियर नो फाइब्रस लेयर फॉर्मेशन, यानी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर जब एंथर का डेhiscence होना होता है और मैच्योर हो जाता है तो वो फाइब्रस हो जाती है। लेकिन इस पोजीशन पे वो फाइब्रस नहीं होती। इस वजह से जब कभी भी डेhiscence होना होता है तो इसी पोजीशन पे होता है। तो अभी तक बेटा हमने देखा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर और उसके बाद हमने देखा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sporangium as well as what process of formation of microspore. So this was all about for today. अभी तक हमने बताया कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन था एंथर का उसमें 4 लेयर्स थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो और वी कैन से दैट sporangium, that is eusporangium type. It means that group of cells are forming sporangium, वो इंपॉर्टेंट है। हमने आपको जितने भी इवेंट्स थे वो एक एंथर के अंदर दिखाए। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर यंग स्टेज में एंथर है तो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में यही वाली कंडीशन रहेगी। अगर मैच्योर स्टेज में है तो चारों में यही वाली कंडीशन है। हमने एक एक करके बनाया है, बट दीज कंडीशन विल बी इन ऑल फोर्स एट द सेम टाइम। चारों में रहेगा, एक ही समय पे रहेगा। ठीक है। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस है जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स से मेल गैमेटोफाइट। कैसे ये सारा फॉर्मेशन हुआ वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज वेल एज हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।